सबको नमस्ते. Greetings to one and all present here. I am extremely privileged to have this opportunity to address you all at this important moment for celebrating our 11th annual day today. It is an honor for me to deliver my welcome speech for annual function. Today's children are the future of our state as well as our country. Brilliant faces I am witnessing today. They may grow up to achieve great success, name, fame, and as well as human values. But on the other hand, we wish them to good human beings also and make this world a better place to live in. We all are gathered here on this annual day to motivate and inspire the young minds to showcase their talents. This is a highly important occasion for everyone. It is because of that, apart from the fact that this celebration highlights our institution's continuous success in the area of computer education. And this platform is also an opportunity to welcome our chief guest today's program. On behalf of this institution, I cordially and respectfully welcome our chief guest, Dr. Mala Sharma, Principal of Ramkrishnanagar College. Our chief guest does not need any formal introduction, as she is a well-known and distinguished figure in our society. We are grateful from the bottom of our heart to heart for accepting our invitation for becoming the chief guest of this occasion today. To the world, our parents may be just one person, but to us, they may be the world. With immense joy from our institution, we welcome our lovely parents. In the end, I would like to welcome all the honorable guests, teachers and staffs who are an integral part of this institution. I request all for your kind cooperation throughout this program and making it a grand success. Thank you. Our Devashish Sinasa, the principal of CBP HS School, to come forward and just say something towards the learners, the gatherers. Thank you so much. That is being organized as an annual day with so much pomp, but with humility, maintaining all the decorums, societal decorums, without every single bitch anywhere, such beautifully coordinated. Thanks are due to all the organizers, especially to Prabhakar Upadhyay, directors UCEC. So before telling us starting my formal speech, मैं प्रभाकर और उनके सहयोगियों को एक छोटी सी याद दिलाना चाहूँगा। हमारे ओलिविया जैसे इलाके में इस तरह का इंस्टीट्यूट रन कर रहा है वो 11वीं वर्षगांठ मना रहा है और इसमें इतने सारे बच्चे, पेरेंट्स, इंस्ट्रक्टर्स और इसको इससे प्यार रखने वाले, मोहब्बत रखने वाले लोग इकट्ठे हुए हैं। सबका प्यार जाहिर है कि इस इंस्टीट्यूट पर है। तो चूंकि इस इंस्टीट्यूट का नाम UCEC है, तो आजकल हमारे पास बहुत सारे रिसोर्स उपलब्ध हैं, हर तरफ चारों ओर जहां देखें वही रिसोर्स अवेलेबल है। उसी रिसोर्स को काम में लगाकर UCEC जो UPSC से मिलता जुलता है, तो बीच वाला दो अक्षर को अगर हटाकर वहाँ पे UPS अगर डाल देंगे और बच्चों को यहाँ से आफ्टर ग्रेजुएशन, if we start grooming them, we have resources available online, a lot of resources, there is no doubt of it. So we can exploit that resource. हमें जो ऑनलाइन उपलब्ध है, जो संसाधन, उसका खूब उपयोग करना चाहिए। आने वाले दिनों में निभिया से, ओलिविया से, हमारे इलाके से अगर कोई IAS ऑफिसर निकल कर आए, ACS ऑफिसर निकल कर आए, ऐसा कौन सा शख्स होगा जिसे खुशी नहीं होगी? किसको पता था कि हमारे पास के बाजारी छोड़ा के पुलिस आउटपोस्ट के
कांस्टेबल का लड़का एसीएस बनेगा। किसको पता था विक्रम चाचा और अमित चाचा जिनके पिताजी ट्रैक्टर चलाते थे, उनके दोनों बेटे एसीएस और ओपीएस होंगे। किसको पता था हमारे लखीपुर के विक्रम कोहली जी एक ही बार में आईएएस बनकर निकल कर आएंगे, जो भी माजुली के डीसी है शायद। तो हमारे अंदर जो ताकत है, जो टैलेंट है, उसको निकालना है। उसके लिए रिसोर्स मैंने अभी बोला ऑनलाइन सो मच अवेलेबल एंड यूसीएसी। क्योंकि मुझे अच्छा लगा ये बात सुनकर जब प्रभाकर बोल रहा था वी आर इम्पोर्टिंग एजुकेशन। एजुकेशन हमारा देना पहला काम है और हमारी इससे प्राप्ति क्या होती है दूसरी बात है। प्राप्ति से हमारा मतलब नहीं है। तो ये बात मुझको बहुत अच्छा लगा। उसने बहुत अच्छे तरीके से बताया इस सेंटर की जर्नी जो 2011 में शुरू हुई थी। 11 साल की इस यात्रा में इस सेंटर को कंप्यूटर सेंटर से कंप्यूटर एजुकेशन सेंटर बनने में जो दिक्कतें आई, जो समस्याओं का उनको सामना करना पड़ा, उसका बहुत उन्होंने रिपोर्ट दिया। और प्रभाकर ने बहुत नम्रता के साथ बोला कि वो आभारी है। आभारी तो हम हैं, मैं तो खास करके हूं कि आई एम so much happy to be able to be a part of such a beautiful arranged program. No, actually this is as seen by me. This is the first of its kind to be organized in this locality, not only in Nivea but also in Rathabari. Probably a program to be anchored by such a young and dynamic anchor who is fluent in English and such a tiny place, but all the corners have been very beautifully utilized so that we can expand our territorial sites, and every inch has been taken into use. So इससे पता चलता है कि हमें अपने संसाधनों का इस्तेमाल किस तरह से करना है। इसी लगन से काम करेंगे तो क्यों ना हमें सफलता मिलेगी, मुझे उम्मीद है। और अब जाता हूं दूसरी जो बात है, हम जब पढ़ाई शुरू करते हैं तो जो बिगिनर्स होते हैं एकदम शून्य से शुरू करते हैं। लेकिन अगर आजकल की बात करेंगे तो हम जब पढ़ाई की शुरुआत करते हैं तो शून्य से नहीं होती है, क्योंकि बच्चे को फॉर्मली कोई भी शिक्षा देने से पहले उसके पास कुछ ना कुछ नॉलेज आ जाता है उसके पास। जैसे किसी भी बच्चे को आप मोबाइल मत सिखाइए, मोबाइल देख देख के 2-3 चीजों का उसको पता चल जाता है, कैसे बंद करना है, कैसे खोलना है, या 2-3 लफ्ज उसको आता है, पासवर्ड लगता है, पिन लगता है। तो ये जो इंफॉर्मेशन है उसके पास पहले से मौजूद रहता है। तो आजकल की जो शिक्षा नीति है, जो एजुकेशन देने की जो सिस्टम है, उसमें एक बहुत अच्छा टर्म है, आप लोग याद रखिएगा, कंस्ट्रक्टिविज्म। मतलब निर्माण करना, मुझे सिखाना नहीं है, बनाना है, निर्माण करना है। क्या, कैसे? शिक्षार्थी के पास, विद्यार्थी के पास जो भी नॉलेज है, जितना तक वो जानता है, जहां तक उसकी पहुंच है, उसके आधार पर उसके बाद तुम सिखाने शुरू करो उसको, उसके बाद तुम आगे बढ़ो उसको लेकर। तो जो बच्चे यहाँ पे कंप्यूटर सीखने आएंगे, कंप्यूटर के बारे में जानने आएंगे, वो थोड़ा बहुत पहले से लेकर आएंगे घर से। There is a previous knowledge they have already have, and we have to construct for next knowledge, further knowledge on the basis of the knowledge they already have achieved, acquired. जो पहले से हमने प्राप्त किया उसके आधार पर, उसके बलबूते पर हमें निकलना है। तो इस तरह से देखा जाए
क्योंकि इस जमाने के बच्चे हैं लर्नर्स से, सबके पास कंप्यूटर के प्राइमरी जो चीजें हैं वो मतलब सबको होता है जानकारी। तो उसको आधार बनाकर ये यूसीसी जो जिस मिशन को सामने लेकर आगे बढ़ रहा है वो जरूर सफल होंगे। और यहाँ पे जो मौजूद है सब गार्जियंस और पेरेंट्स, सबसे मेरा ये आग्रह रहेगा, क्योंकि आज की जमाना जो है वो जमाना ही है स्पेशलाइजेशन का। स्पेशलाइजेशन किसी भी क्षेत्र के किसी भी छोटी सी एक चीज पर स्पेशलाइजेशन हो सकता है। आप लोग डॉक्टर के पास जाएंगे तो देखेंगे कार्डियोलॉजिस्ट हैं, ऑन्कोलॉजिस्ट हैं, नेफ्रोलॉजिस्ट है, क्या होता है डिपार्टमेंट। पूरे डॉक्टरी विद्या जो उस पर स्पेशलाइज नहीं होते, एक एक क्षेत्र में होते हैं। तो आज की जो जमाना जो स्पेशलाइजेशन पर चल रहा है वो स्पेशलाइजेशन की 90% जो है वो इसी पर आधारित है, कंप्यूटर पर। हर स्पेशलाइज्ड व्यक्ति इंसान कंप्यूटर को लेकर चलता है, और आप स्पेशलाइज्ड नहीं होंगे तो इस दौर में, इस जो चूहा दौर है, इसमें आपको पीछे पड़ना होगा, पीछे जाना होगा। तो बच्चों को आगे बढ़ाना है तो इस रेट में अगर चूहे की दौड़ में अगर आगे बढ़ाना है तो आपको स्पेशलिस्ट बनना पड़ेगा, और बनने के लिए आपको इसका सहारा लेना होगा। तो आप लोगों की हमेशा से जो देते आ रहे हैं उस सहयोग आगे बढ़ाते रहिए। और हमारे पास यूसीसी के पास जो डेडिकेटेड इंस्ट्रक्शनल टीम है, उन लोगों की जो डेडिकेशन है वो तो है ही। दोनों मिलकर बच्चों को साथ लेकर यूसीसी का जो मिशन है उसको आगे बढ़ाएं। और सपना जो मैंने बताया, यूसीसी को थोड़ा सा उलट फिर करके यूपीएससी का भी हम लोग इसमें थोड़ा ऐड कर देते हैं, ग्रूमिंग कर देते हैं। हम लोग ट्रेनिंग नहीं देंगे, ग्रूम कर देंगे। इसको ध्यान में रख के आगे बढ़िए। आगे जाके हमें विक्रम कोहली, विक्रम चाचा, अमित चाचा जैसे इंसान निकालना है। और किसी ने अगर ठान लिया तो उसको तो प्राप्त करके छोड़ता है। और निभिया से मेरा तो बहुत पुराना रिश्ता है, आज की नहीं है। तो ये मेरा दूसरा घर जैसा है। जब भी यहाँ आता हूँ तो मुझे लगता है मैं बाहर नहीं आया हूँ। निभिया वाले कर सकते हैं। इसी उम्मीद से आप सबको धन्यवाद देते हुए, खास करके मैंने पहले हमारे मीडिया के जो प्रतिनिधि हैं उनको रिक्वेस्ट करना भूल गया। मैं मीडिया पर्सन्स को धन्यवाद देता हूं, आज इस प्रोग्राम को कवर करने आए हैं। तो हमारे प्रेस फ्रेंड्स सबको धन्यवाद देते हुए, और मुझे कुछ दो शब्द बोलने का मौका देने के लिए उद्योक्ताओं को, आयोजकों को नमन करके मेरी छोटी सी बात को यहाँ विराम देता हूँ। धन्यवाद। Utilization is everything, because it may lead to great results, and we may have great leaders in future from Olivia Chera as well. So again, I would like to give a huge round of applause for sir for saying great things towards the public here. And so let's bring forward the next part of our program, which should be okay, some eager students are here for great speech. Let's hear them. So we have Binamra Kohar here. Can we have Binamra Kohar right on the stage? Binamra Kohar. Okay, I would like to take 1 minute from Binamra and pause his speech here. प्रोग्राम में हम लोग बनाए थे, कम से कम 2 घंटा लगता, लेकिन हमारे गेस्ट, स्पेशल गेस्ट, चीफ गेस्ट तथा हमारे अतिथिगण गर्मी के कारण बहुत परेशान हो रहे हैं। सबका प्रॉब्लम आ रहा है, मतलब बार बार जाने के लिए ऐसे दिक्कत के कारण प्रोग्राम को बहुत शॉर्टली कर रहे हैं हम लोग।
तो इसमें कुछ डांस वगैरह था, सॉन्ग भी था, कल्चरल प्रोग्राम था, तो उसको हम शॉर्ट में करेंगे, इसके लिए सॉरी। प्रोग्राम तो आगे कंटिन्यू। Alright, thank you so much, and I would also like to say sorry to all of you for the inconveniences that you all are going through. So let's have Vinamra Kohar and let's listen to him. मैं समारोह उद्देशक को मुझे महत्वपूर्ण अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद कहता हूँ। मेरा नाम विनम्र कोहार है। मैं यूसीसी इंस्टीट्यूट का DCA का छात्र हूँ। मेरे पिताजी का नाम विजय कुमार कोहार है। मैं यहाँ पे आज कंप्यूटर के विषय पे कुछ शब्द कहने के लिए उपस्थित हुआ हूँ। तकनीकी उन्नति के आधुनिक संसार में विज्ञान द्वारा कंप्यूटर हमारे लिए एक महत्वपूर्ण भेंट है। इसने मनुष्य के जीवन शैली और आदर्श को बदल दिया है। कोई भी बिना कंप्यूटर के अपने जीवन की कल्पना भी नहीं कर सकता, क्योंकि ये बहुत कम समय में बहुत सारे कार्य को सटीक रूप से पूरा करता है। विकसित देशों के विकास में कंप्यूटर का एक महत्वपूर्ण योगदान रहा है। कई लोगों द्वारा इसे संचार तथा मनोरंजन के लिए भी इस्तेमाल किया जाता है। कंप्यूटर एक यांत्रिक मशीन है जो आधुनिक युग के सबसे महत्वपूर्ण आविष्कारों में से एक है। आधुनिक युग को कंप्यूटर युग भी कहा जाता है। इसका मुख्य कार्य तो सूचनाओं को सहेजना और साझा करना है, परंतु आजकल इससे कई जटिल कार्य भी किए जाते हैं। ये कार्य स्तर पर व्यक्ति के श्रम को कम कर देता है, अर्थात कम श्रम शक्ति और कम समय पर उच्च स्तर का परिणाम प्रदान करता है। इस कंप्यूटर में हम इंटरनेट का इस्तेमाल कर किसी भी विषय की जानकारी प्राप्त कर सकते हैं। यह व्यापारिक लेन देन के लिए बेहद आसान और सुरक्षित है। कंप्यूटर में डेटा स्टोरेज की सुविधा की वजह से सरकारी, गैर सरकारी स्कूल, कॉलेज आदि स्थानों पर कागजों की बचत होती है। कंप्यूटर द्वारा हम ऑनलाइन खरीदारी, बिल जमा करना जैसे कार्य कर सकते हैं, जिससे हमारे समय तथा ऊर्जा दोनों की बचत होती है। छात्रों की सहायता के लिए और उनके कौशल को विकसित करने के लिए भारत सरकार द्वारा कंप्यूटर शिक्षा को अनिवार्य कर दिया गया है। आज के आधुनिक समय में नौकरियां प्राप्त करने के लिए कंप्यूटर शिक्षा होना लगभग अनिवार्य हो चुका है। हमारे लिए कंप्यूटर के सैकड़ों फायदे हैं, तो साइबर अपराध, अश्लील वेबसाइट जैसे कई नुकसान भी शामिल है, जिसकी पहुंच हमारे तक बहुत आसानी से हो जाती है। हालांकि कुछ उपाय अपनाकर हम इसके कई नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी वाणी को विराम देता हूँ। त्रुटियों के लिए क्षमा प्रार्थी हूँ। आप सभी जन यहाँ पे उपस्थित हुए उसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद। Thank you, Vinamra, for your Vinamra speech. उनको बताना चाहता हूँ, ये जो विनम्र कोहार जो लड़का अभी बोल के गया है, इस बार की क्लास 9 की जो एनुअल एग्जाम हुआ है उसमें हमारे सेंटर का टॉप स्कोरर है। Very good to know that. Talent hunter, right? Okay, so opportunity. I'm Ranjit. I am a student and I live in a beautiful place named Mangrasera in Karimganj district. My father's name is Ram Naranba and he is a farmer. That's all about me. Here present our chief guest, special guest and our honorable guest. A wonderful morning to all of you. Today we all have gathered here to celebrate this day. I would like to speak a few words on computer. Needless to say how the computer has become an important part of our everyday life. Can we imagine our lives without it? I'm sure the answer will be no. Office, schools, hospitals, governmental organizations and non-governmental organizations, all is incomplete without it. Our work, whether it's school homework, or office work, or mother's household work, all is dependent on the computer. It has various uses. The medical field uses a computer to diagnose diseases. So far they are able to find a cure for various diseases due to this computer. Even in the field of research, computers have brought a lot of change. Whether it's scientific research, social research or space research, computers have helped in all of them. It has helped to keep a check on the environment, society and space. Computers have also contributed to the most important sector of a country, i.e. defense. It helps the country's security agency to detect a threat that can be harmful in the future. The defense industry also uses to keep surveillance on our enemy.
A computer has many advantages, as I mentioned earlier, but there is nothing in the world which has no disadvantage. Even computer which has become so important for us, such as hackers can steal the data and release it on the internet. Anyone can access this data. Apart from this threat, there are other threats too, such as threats like virus, spam, back ads. It has become an addiction to for many people. Even students spend a lot of their time sitting in front of computer screen, playing games and watching movies. We need to remind ourselves that excess of everything is bad. We should try and limit its use, as its excessive use can be harmful to our eyes, back, brain, and can lead to various problems too. In the end, I would like to add that it is a boon and we can stop it to become bad if we use it casually. Thank you for lending me your ears. If I have made any mistake, then I apologize to all of you. Thank you so much. For such a great speech, no apology is needed, right? Okay. Let me get the contestants first and then I'll be announcing the names. It's Apinath and the party. Let's party. Thank you.
and it was euphonious. Thank you so much. Now we are going to have our respected Divakar Roy Sharma sir, and I would request him to come forward and say something in precise and short. Thank you so much.